Hello dear friends, welcome to this online maths class. In this video lecture now we are going to learn increasing and decreasing function in chapter number 6 application of derivative. First of all increasing and decreasing function के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे तो let's focus on the definition. Let I be an interval, open interval contain domain of real value function f and f is said to be first one increasing on interval I if x1 less than x2 then f of x1 is less than f of x2 where x1 x2 both belongs to I. F is said to be strictly increasing function on I if यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं x1 is less than x2 then f of x1 less than f of x2 both x1 x2 belongs to I. So f is said to be strictly increasing on interval I. If we want to say f is decreasing function on I then only if x1 less than equal to x2 whenever we apply function f it becomes greater or equal to where x1 x2 both belongs to I. इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है तो समझ जाना कि फंक्शन डिक्रीजिंग है. यदि हम कहेंगे f is strictly decreasing on I if and only if x1 less than x2 and whenever we apply the function f of x1 is greater or equal to f of not equal to but only greater f of x2. इस सिंबल को आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं है लेकिन वेरिएशन यहाँ पर चेंज हो जाता है तो फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ये है डेफिनेशन के बेसिस ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग किस तरह से है और डिक्रीजिंग किस तरह से है. एक एग्जांपल के द्वारा आप समझेंगे. लेट वी स्टडी वन इलस्ट्रेशन नंबर 7. ध्यान दीजिए दोस्तों. व्हाट इज इट? शो दैट द फंक्शन f of x फंक्शन f is given by illustration number 7. f of x is equal to 7x minus 3 is strictly increasing on R. See, we have two values x1 x2 belongs to R. x1 is less than x2. दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x1 is less than 7x2. दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7x1 minus 3 less than 7x2 minus 3. ये वैल्यू होगी f of x1 और ये वैल्यू होगी f of x2. So it obeys the second definition. ध्यान दीजिए आप. If x1 less than x2 then if we prove f of x1 is less than f of x2 then we definitely say that given function is strictly increasing function. So here we can say that f is strictly increasing function on real numbers R. आप समझ रहे हैं? ये डेफिनेशन के हिसाब से हम ये सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 1. Theorem number 1 is also be utilized to find out the function whether either increasing or decreasing. How can we derive it? Consider any function f which is continuous
closed interval AB and differentiable on open interval AB. And first one, if for the x belongs to AB, if f dash x is greater than, if f dash x is greater than 0, then we can say that f is increasing function. This increasing can be represented by upward arrow. Same way, for the x belongs to AB and if f dash x यदि नेगेटिव मिलता है तो समझ जाना कि f is decreasing function, a decreasing function है. And third one is for x belongs to AB, if f dash x is equal to 0, यदि f dash x 0 है तो समझ जाना कि f is constant function, neither increasing nor decreasing. क्लियर दोस्तों? पहले आप ये थियरी कॉन्सेप्ट समझे. बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस और ओबे और गो थ्रू थ्योरम नंबर 1. डेफिनेशन के मुताबिक हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव नहीं करेंगे. हाँ, हालांकि क्वेश्चन में कहा गया है तभी हम डेफिनेशन का यूज करेंगे, अदरवाइज वी मस्ट गो थ्रू थ्योरम नंबर 1. मतलब जब भी हमें किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो हम सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यदि वो जो वेरिएबल डिफरेंशिएशन मिला हमें वो गिवन x के लिए यदि पॉजिटिव है तो समझ जाना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, वो नेगेटिव है तो समझ जाना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है. यदि वो एग्जैक्टली 0 है तो समझना ये है कि वो फंक्शन क्या है भाई, तो कांस्टेंट है. क्लियर? तो दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, शो दैट द फंक्शन f which is given by fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x where x belongs to R is strictly increasing on R. हमें बताना है, प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट वी हैव आंसर की हम बात कर रहे हैं fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x. Now taking differentiation of given function with respect to x, तो क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3x square minus 6x plus 4. अब हमें ये जानना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्रूव करना है तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. ध्यान दीजिए, यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 3 into 2x 4x का होता है 4. यहां पर आप देखिए तो लास्ट टर्म क्या होगा, तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म 4 into फर्स्ट टर्म है कि नहीं. फर्स्ट टर्म का सिंपल कोएफिशिएंट 6 स्क्वायर का होगा, 6 का 36, 4 into 3 12, 12 3 जा 36, तो लास्ट टर्म भी 3. सो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 करके हम 4 को बैलेंस कर सकते हैं. ओके, इन सब में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं. 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर 3 into x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 2. अब मुझे बताइए आप कि ये जो टर्म है x minus 1 होल स्क्वायर वो क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, तो 0 भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है.
मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव और 0, लेकिन उसमें एग्जैक्टली 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली पॉजिटिव, नॉट 0 नॉट नेगेटिव। सो हियर which is greater than 0, it means f dash x greater than 0. So we can say that f is strictly increasing, therefore we can say that f is strictly increasing function on R। समझिए दोस्तों। चलो ऐसे कई क्वेश्चन और भी हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा और किस तरह से इसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। ओके, लेट अस स्टडी विद मोर polynomial type of example, illustration number 10। Here we have the function f of x is equal to x square minus 4x plus 6. Find the interval in which the function is strictly increasing and decreasing। दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 में समझाता हूं अच्छी तरह से, उसमें भी यही करना है। Find the interval in which the function is strictly increasing and decreasing, and that function is given by 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, f dash x फाइंड करेंगे। तो 4 into 3x square 6 into x square का डिफरेंशिएशन 2x minus 72 and differentiation of x is 1 means 12x square minus 12x minus 72। इन सभी में से हम 12 कॉमन ले सकते हैं। we have x square minus x minus 6। देखिए दोस्तों, जब सिर्फ प्रूव करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो क्वाड्रेटिक को हमने परफेक्ट स्क्वायरिंग में कन्वर्ट किया। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। लेकिन जब इंटरवल फाइंड करना है तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 12 into 6 को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, जिनका सब्ट्रैक्शन या माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्शन लीजिए, प्लस साइन होता तो एडिशन लेते। सब्ट्रैक्शन से हमें -1 मिले, तो 3 2 6 x minus 3 and x plus 2। क्लियर दोस्तों? ओके, मैं आपको एक बात और बताता हूं, जितने भी यहां पर आपको ब्रैकेट मिलते हैं उन ब्रैकेट इज इक्वल टू आप 0 कंसीडर कर लीजिए और उसमें से x फाइंड करिए। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2। अब यहां पर एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे जहां पर इन वैल्यू को हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। तो -2 पहले आएगा, फिर बाद में 3 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 रीजन्स है। x यहां हो सकता है, x यहां हो सकता है और x यहां हो सकता है। तो सबसे पहले होगा इंटरवल, हम लेंगे इंटरवल। सेकेंड पार्ट होगा x -3 के लिए, दूसरा पार्ट होगा x plus 2 के लिए, तीसरा पार्ट होगा, देखिए 12 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम f dash x के बारे में कहेंगे। एंड द फोर्थ कॉलम इज फिफ्थ कॉलम इज अबाउट फंक्शन f, हम f के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इंटरवल होगा -∞ टू -2। आप देख रहे हैं -2 से लेफ्ट साइड। अब ध्यान से देखिए, देखो किस तरह से हमने एग्जांपल कैलकुलेट किया है, समझ में आ रहा है? ओके, आप इनमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज -3, यदि x के बदले आप -3 यहां पर अप्लाई करोगे -3, तो देखिए
-3 -6, तो ये आंसर होगा नेगेटिव। यदि हम लेते हैं x -3 तो इट इज ऑल्सो भी नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पर f डैश x देखिए दोनों प्रोडक्ट में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा पॉजिटिव। यदि यहाँ पर माइनस साइन होता फॉर एग्जाम्पल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता पॉजिटिव इनटू माइनस, तो ये होता नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव है, तो f डैश x यदि पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 1 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। दोस्तों क्लियर? दूसरा इंटरवल होगा -2 से 3। इन ऑर्डर में, इन डोमेन में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज 0 लेंगे तो 0 -3, तो ये वैल्यू होगी नेगेटिव, बट ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। उस वक्त एक फंक्शन रहेगा डिक्रीजिंग। थर्ड इंटरवल लेते हैं 3 टू इंफिनिटी, तो यहां पर सभी होंगे पॉजिटिव। आप कंसीडर कीजिए नंबर 4 लेकर के, तो 4 -3 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इस इंटरवल में आ सकती है ऐसी कोई भी वैल्यू। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव। तो यदि f डैश x ही पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर दोस्तों? तो पहले आप डिफरेंशिएशन लो, फिर फैक्टराइज करो, फिर जितने भी ब्रैकेट है उसमें से एक्सपांड करके एक नंबर लाइन पर एक इंटरवल फॉर्म कर दो। फिर देखिए यही कॉलम को हमें आगे बढ़ाना है। फिर आप इस कॉलम को अच्छी तरह नोट कर दीजिए। अब आपको पता चल ही जाएगा कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से फंक्शन में कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। क्लियर? बहुत ही बढ़िया मेथड है। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़े से और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वैसे तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया है, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज में से देना चाहता हूँ। दोस्तों एक्सरसाइज 6.2 में एग्जाम्पल नंबर 1 आप कैलकुलेट करिए, एग्जाम्पल नंबर 2 आप कैलकुलेट करिए, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। इतने क्वेश्चंस आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो हमारा ये इस वीडियो का जो भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको वर्क है वो वर्क माना जाएगा कि आपको समझ में आ चुका है और आपने प्रैक्टिस की है अच्छी तरह से। तो क्लियर दोस्तों? आज के टॉपिक में यहाँ तक। नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चंस पढ़े, समझे, थियरी पढ़े, थियरी समझे और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।